नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट वर्कर्स एसोसिएशन ने वन विभाग के अन्य 3 अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में शहर के मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में फ्रूट सलाद वितरित। कर्नाटका में कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ाने के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। जाति जनगणना समाज को बांटने की कांग्रेस की साजिश है, बेलाड। पीएम मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से की फोन पर बात। बाबरी मस्जिद शहीद होने पर दंगे हमने करवाए, दिग्विजय सिंह की फिसली जुबान, वायरल हो रहा वीडियो। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट वर्कर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बंगले के नेतृत्व में पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बंगले, मल्लिकार्जुन पगाड़े और जॉनसन घोड़े ने 15 अप्रैल की रात को वन अधिकारियों द्वारा पत्रकार रवि भूसांडे पर किए गए हमले की निंदा की और मांग की कि उन पर हमला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, जिनमें से एक को निलंबित कर दिया गया है और शेष 3 अधिकारियों के भी निलंबन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। घटने ಬಹಳಷ್ಟು ಖಂಡಿಸುವಂತ ಘಟನೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ಇಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನೈಟ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಚಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಏನು ನಡುತೋಪುಗಳದ್ದೇನಿದೆ ಅದೊಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬಂದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರು ಏನೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ವರದಿಗಾರರಾದಂತಹ ರವಿ ಭೂಸುಂಡೆ ಅವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೃಗೀಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮೃಗೀಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ತೋರಿಸಿದೀವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ. ಈ ವಿಚಾರದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೀನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೀಯ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕುರಿನ್ ಕೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಸಾಲೆ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತೀವ? ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತವೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೋಗಂಥದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ. ನಿಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೆಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೆಚ್ಚಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಗಸ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಾಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳಾದ ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 8 ಭಾಗದಲ್ಲಿನೂ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು 50ರಿಂದ 60 ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಗಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ IGP ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ನೀವು ಎಡವಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ರವಿ ಭೂಸುಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೋಗಿದಾರೋ ಅದೊಂದು ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೂ ನೀವು 307 ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಚಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 307 ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಗಡೆ ಅಂತ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ರವಿ ಭೂಸೊಂಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ 7-8 ಏಟುಗಳನ್ನು ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ವಾ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಘದಿಂದೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಿಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ IGP ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮೂಲಕ ಆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಸ್ತಗೀರ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಒಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಆ ಪದ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುಂಡಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೇಕು. ಕರೆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ? ಇದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ರವಿ ಭೂಸಂಡೆ ಅವರು ಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಭೂಸಂಡೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅದು ಸರಿ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ, ಸರಾಯಿ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಸರಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ 4 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में शहर के मंगलपेट में रहे मेथोडिस्ट अस्पताल परिसर में फेथ फाउंडेशन द्वारा आज सार्वजनिक रूप से फ्रूट सलाद आदि वितरित किए गए। इस मौके पर ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया। इस मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्ष रिचार्ड ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। आज जो गुड फ्राइडे के दिन पर फेथ फाउंडेशन की तरफ से जो फास्टिंग रहते हैं, आज 3 बजे तक प्रेयर चलता। जो जीसस जो सूली पे चढ़ाने के बाद जो बात करते, वो 7 बात जो रहता उनका विश्लेषण रहता, उसका मैसेज रहता। आज 3 बजे तक फास्टिंग रहता। 3 बजे के बाद सभी लोग फास्टिंग छोड़ने के लिए फ्रूट्स का इंतज़ाम करते हैं प्रेयर होने के बाद। तो फेथ फाउंडेशन की तरफ से हम यहाँ फ्रूट सैलेड का इंतज़ाम किए थे और बहुत सारे लोग हमारे सेंट पॉल्स मेथोडिस्ट चर्च के लोग यहाँ पे आ गए, उनके लिए हम इंतज़ाम किए थे फ्रूट सैलेड के। तो ये कार्यक्रम फेथ फाउंडेशन की ओर से किया गया। ये फ्रूट सलाद कार्यक्रम कितने साल से चल रहा है? 2 साल से। आपका नाम सर? ಪ್ರಮೋದ್ ಚಿತ್ರಿ. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನದಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಈ ದಿನದಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತದೆ. ಈ 3 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲೆಡ್.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜನರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫುಡ್ ಸಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಒಂದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಮೋದ್ ಚಿತ್ರಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರೇನು? ಫೇತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಫೇತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ ಬೀದರ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದಂಥ ನಾನು ರಿಚರ್ಡ್ ಸೊರಳಿಕರ್. ಈ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಜಾಫ, ಸಂಜಯ್ ಸರ್, ಬಬ್ಲು ಅಣ್ಣ, ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಮೋದ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾನಿ ಮತ್ತು ರೋಬೆನ್ ಮತ್ತು ಚಿಂಟು, ಜಾಯ್ ಗಂಟಿ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಫೇತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಫೇತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನದಂದು ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ತಿಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಲಿ ಎಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಸರು? ರಿಚರ್ಡ್ ಸೊರಳಿಕರ್. कर्नाटका क्रिश्चियन डिफेंस फोरम ने गुड फ्राइडे के अवसर पर श्रद्धालुओं को छाछ वितरित की। इस अवसर पर कर्नाटका क्रिश्चियन डिफेंस फोरम के जिला अध्यक्ष अनिल निडोडा, राजू कोड़ार आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈ 40 ದಿವಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಗಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ, ವಿಶ್ವವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 40 ದಿವಸ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಆತನು ಸೈತಾನನು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸೈತಾನನು ತುಳಿದು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಅನಿಲ್ ನಿಡೋದವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ रुकते हैं समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ फ्रीडम पार्क में विशाल विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर, चावल, सोना और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। उन्होंने अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। बेंगलुरु, कोलार, चिकबल्लापुरा, तुमकुर और आसपास के इलाकों में आए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी नेताओं को कीमतों में बढ़ोतरी के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। सीएम ने कहा कि बीजेपी नेताओं को कर्नाटक सरकार और उसकी गारंटी योजनाओं के खिलाफ बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता दूध की कीमत में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। यह पैसा सीधे किसानों के पास जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कर्नाटक को करों और जीएसटी संग्रह से उसका उचित हिस्सा देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने ईंधन, आवश्यक वस्तुओं, उर्वरकों, सोने, सीमेंट और स्टील की कीमतों में वृद्धि के लिए भी केंद्र को दोषी ठहराया। शिव कुमार ने कहा कि हमने लोगों पर इस मूल्य वृद्धि का बोझ कम करने के लिए गारंटी योजनाएं दी हैं और किसानों की आजीविका बचाने के लिए दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। इसलिए जनता का गुस्सा भाजपा सरकार के खिलाफ होना चाहिए। मूल्य वृद्धि के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भाजपा और जनता दल ने इस आंतरिक लड़ाई और नेतृत्व की कमी को छिपाने के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन जाति जनगणना रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधानसभा में विपक्ष उपनेता अरविंद बेलाड ने कहा
कि सिद्धरामैया सरकार द्वारा घर घर जाकर डेटा संग्रह किए बिना कराई गई जाति जनगणना समाज को विभाजित करने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सभी समुदायों के लिए एक चेतावनी है। रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनगणना नहीं है बल्कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का एक टूल किट है। लिंगायत समुदाय को और अधिक विभाजित करने के प्रयासों पर प्रमुख लिंगायत नेता बेलाड ने कहा कि 66.35 लाख लिंगायतों और 10.49 लाख वीरशैवा लिंगायतों को अलग करके और उन्हें बंचिगा, गाणिगा, सदारा, उपारा, कूड़ू, ओकलिंगा, जंगम और अन्य जैसे उपसंप्रदायों में विभाजित करके सिद्धरामैया लिंगायत समुदाय के अस्तित्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ वार्ता के बाद फेडरेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट लॉरी ओनर्स एंड एजेंट्स एसोसिएशन, जो 14 अप्रैल की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, ने गुरुवार को अपनी हड़ताल वापस ली। जो ट्रक चालक सरकार से डीजल की कीमतों में वृद्धि वापस लेने का आग्रह कर रहे थे, उन्हें आश्वासन दिया गया कि ट्रकों का किराया डीजल की कीमतों के अनुसार तय किया जाएगा। जिस प्रकार ऑटो कैब और मैक्सी कैब के लिए किराया तय किया जाता है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आरटीओ चेकपोस्ट हटाने के लिए अध्ययन किया जाएगा। हड़ताल वापस लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए FKSLOA के अध्यक्ष JR शानमुगप्पा ने डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि ट्रक मालिक कई वर्षों से निर्धारित लागत पर ट्रक चला रहे हैं और उन्हें घाटा हो रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के CEO एलन मस्क से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने मस्क से कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। पीएम मोदी और मस्क के बीच हुई बातचीत में इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन DC में हुई बैठक के दौरान चर्चा में शामिल विषय भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्होंने मस्क के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी और मस्क के बीच आज भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने मस्क से भारत की न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस नीति पर जोर दिया। मस्क ने भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अपनी रुचि दोहराई, जो अभी नियामक मंजूरी के इंतजार में है। पीएम मोदी ने मस्क के बीच टेस्ला के भारत में मैन्युफैक्चरिंग आधार स्थापित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयात शुल्क कम करने पर भी बात हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की एक कार्यक्रम के दौरान जुबान फिसल गई। सिंह ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तब मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था। भोपाल में 1947 में भी ऐसे दंगा नहीं हुआ, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरने पर दंगा हुआ। उन्होंने कहा कि दंगा फसाद होने में हमने पूरी कोशिश की। दरअसल दिग्विजय सिंह का कहना था कि दंगा फसाद रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई। कांग्रेस नेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि शाहजहांपुर के चौबदारवाड़ी में मुस्लिम समाज द्वारा सद्भावना सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार को घेरने लगे। इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी उस समय में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। मैंने लगभग 2 हफ्ते तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रात बिताई। घर नहीं जाता था, लेकिन हिंदू मुसलमानों को जोड़कर हमने दंगा फसाद रोकने में पूरी कोशिश की। यहाँ उन्होंने दंगा फसाद रोकने के बजाय दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की, ऐसा कह दिया। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने चोकसी की 2565 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी है। इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को प्रभावित बैंकों के नाम पर सावधि जमा
एफडी के रूप में रखा जाएगा ताकि पीड़ितों को उनकी राशि वापस दी जा सके। अब तक गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री से 125 करोड़ रुपए की राशि पीड़ितों को लौटाई जा चुकी है। इन संपत्तियों में मुंबई के सांता क्रूज स्थित 6 फ्लैट, 2 फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल हैं। मुंबई में 15 फ्लैट्स और 17 कार्यालय परिसरों, कोलकाता में 1 मॉल, अलीबाग में 4 एकड़ का फार्म हाउस, नासिक, नागपुर, पनवेल और तमिलनाडु के विलुपुरम में 231 एकड़ भूमि, हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में 170 एकड़ का पार्क जिसकी अनुमानित कीमत 500 रुपए करोड़ से अधिक है। मुंबई के बोरीवली और सांता क्रूज क्षेत्रों में फ्लैट्स, मुंबई के सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2 कारखाने और गोदाम भी जब्त किए गए हैं। बिहार में साल 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स के साधने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक आने मार्ग से महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बता दें कि अलग अलग जिलों में जाकर यह संवाद रथ महिलाओं के बीच नीतीश कुमार के कार्यों की जानकारी देगा। खासतौर पर महिला सशक्तिकरण, नौकरी, रोजगार और शिक्षा संबंधित सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से बताएगा। बता दें कि संवाद यात्रा में महिलाओं को यह संदेश दिया जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के हित में क्या क्या काम किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पूर्व नीतीश सरकार महिला वोटरों के साधने में जुटी हुई है। इसी के तहत इस अभियान को तेज कर दिया गया है। 2 दिन पहले जेडीयू कार्यालय पर 2025 से 2030 फिर से नीतीश का नारा देते हुए आधिकारिक पोस्टर भी जारी किए गए हैं। बता दें कि इस पोस्टर का वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें सीएम नीतीश कुमार की योजनाओं और वादों को बताया गया था। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला संवाद कार्यक्रम को नीतीश कुमार सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है। इसके तहत राज्य के सभी गांवों में जाकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 22 तारों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह समर्पण राज्य सरकार और सुरक्षा मस्जिदों की संयुक्त कोशिशों का बड़ा काम चल रहा है। समर्पण करने वालों में 13 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी लंबे समय से पुस्तकालय भंडार में थे और सुरक्षा मस्जिदों के शिलालेख पर थे। इनमें से 2 बेंचमार्क पर 8-8 लाख रुपए की मान्यता थी, 2 पर 5-5 लाख रुपए की मान्यता थी और अन्य मार्ग पर विभिन्न स्तरों के मान्यता की घोषणा की गई थी। सुरक्षा बलों की आस्था और विश्वास, नीति और स्थिरता कार्यक्रमों का असर अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी पंजीकरण योजना के अंतर्गत सभी अभिलेखों को समर्पण करने वाले से सभी मांगे और मदद दी जाएंगी। यह समर्पण सिर्फ एक कार्यवाही नहीं बल्कि छात्रावासाद के खात्मे की दिशा में एक और मजबूत कदम है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन यहां किसी न किसी शहर में आतंकी हमलों से लोगों के बीच दहशत फैल गई है। ताजा हमला पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को हुआ है, जहां आतंकवादियों ने घात लगाकर एक पुलिस वैन को निशाना बनाया। इससे वैन के परकच्छे उड़ गए। इस घातक हमले में एक पुलिस कांस्टेबल और एक कैदी की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि हमला पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान जिले के चौदवान थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने बताया कि हमले को ऐसे वक्त में अंजाम दिया गया जब एक कैदी को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा था। उसी दौरान आतंकियों की ओर से वैन पर घात लगाकर हमला किया गया और पुलिस ने बताया कि इस हमले में चौदवान पुलिस थाने के प्रभारी बाल बाल बच गए। बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि ढाका में सऊदी अरब के पूर्व राजदूत को अपने जाल में फंसाकर 50 लाख अमेरिकी डॉलर ठगने की कोशिश के आरोप में एक पूर्व ब्यूटी क्वीन को हिरासत में लिया गया है। पूर्व ब्यूटी क्वीन ने आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि राजनयिक उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने ढाका की अदालत में दायर याचिका में कहा कि मेघना आलम, उनके करीबी सहयोगी दीवान समीर और 2-3 अन्य लोग विदेशी राजदूतों को खूबसूरत लड़कियों के साथ प्रेम जाल में फंसाने में संलिप्त थे। पुलिस ने हालिया सऊदी राजनयिक या किसी अन्य दूत का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि उसे देश की सुरक्षा में बाधा डालने और देश के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मॉडल एवं मिस
अर्थ रह चुकी आलम 30 वर्षीय एक धर्मार्थ संस्था भी संचालित करती हैं और शुरुआत में उन्हें विवादास्पद विशेष शक्तियां अधिनियम के तहत बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया था। यह अधिनियम पुलिस को किसी संदिग्ध को कई महीनों तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट वर्कर्स एसोसिएशन ने वन विभाग के अन्य 3 अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में शहर के मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में फ्रूट सलाद बिक्री। कर्नाटका में कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ाने के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। जाति जनगणना समाज को बांटने की कांग्रेस की साजिश है, बेलाड। पीएम मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से की फोन पर बात। बाबरी मस्जिद शहीद होने पर दंगे हमने करवाए, दिग्विजय सिंह की फिसली जुबान, वायरल हो रहा वीडियो। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।